Yesterday, I had started the transformation of non-linear functions into linear ones. I said there are 4 transformations: semi-log, double log, reciprocal, and logarithmic reciprocal. We had finished semi-log and double log transformation yesterday. Today we shall be doing reciprocal transformation and logarithmic reciprocal transformation. Reciprocal means 1 by x. So y equal to beta alpha plus beta by x, or y equal to alpha minus beta by x. Now if we take the derivative dy dx, alpha 0, u dash v 0 minus v dash x ka 1 into u beta by x square. dy dx, I told you yesterday, measures the slope. So the slope is everywhere negative. Slope is negative. लेकिन अगर हम लोग साइन को इग्नोर करेंगे तो जैसे जैसे x बढ़ेगा स्लोप घटेगा. As x increases, the denominator will increase, so the value of the fraction will decrease. If we ignore the sign, as x increases, the slope decreases. Now as x tends to 0, so y tends to क्या होगा? Alpha plus beta by 0. Anything by 0 is infinity, so alpha plus infinity, so y tends to infinity. And as x tends to infinity, अगर x infinity tend करता है तो y tends to alpha plus beta by infinity. Anything by infinity is 0, so y tends to alpha. Now we can show that in the form of a diagram. This will be your figure 4. This is alpha and this is the diagram. What does it show? That x कितना भी बढ़ेगा infinity तक भी x जाएगा. y का क्या range है? Alpha. So the reciprocal transformation is useful if one wishes to build in the assumption of an asymptotic level, and this alpha represents the asymptotic level. जो x कितना भी बढ़े, कितना भी increase करेगा, y can only increase, y can only go up to alpha. कितना भी बढ़े x, y का limit is alpha. For case B, अगर y 0 है, for case B, if y is 0, so alpha minus beta by x is 0. So minus beta by x will be equal to minus alpha. Minus minus cancels, cross multiply, x alpha equal to beta, so x is equal to beta by alpha. Now इसका भी अगर हम लोग डायग्राम में देखेंगे, कल बोले थे y एक्सिस का सब पॉइंट में x is 0, x एक्सिस का सब पॉइंट में y is 0, तो y जब 0 है x है बीटा बाई अल्फा. मतलब यहाँ पर एसिम्प्टोटिक लेवल अल्फा है, तो y 0 है कब? x एक्सिस का कोई पॉइंट में y 0 है, y जब 0 है x है बीटा बाई अल्फा. दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द x एक्सिस इज एट बीटा बाई अल्फा. दिस इज योर reciprocal transformation. Now we go to the last one, the logarithmic reciprocal transformation. एक तरफ log भी रहेगा, एक तरफ reciprocal भी रहेगा. Both will be there. So this is the fourth one, the logarithmic reciprocal transformation. This is 4. लॉगरिथमिक रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इस तरह है log y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स. log y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स. बेस ई है, कल बोले थे द log ऑफ ए नंबर विथ रेस्पेक्ट टू ए गिवन बेस क्या होता है? द बेस इज रेज टू दिस पावर टू गेट दिस नंबर. सो y होगा e टू द पावर अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स. इसका डिराइवेटिव करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स का डिराइवेटिव ई एक्स, और पावर का डिराइवेटिव से गुना होगा. पावर यह है अल्फा का 0, u डैश बी 0 माइनस v डैश माइनस 1 इंटू यू बीटा माइनस बीटा बाई वी स्क्वायर. सो इसका डिराइवेटिव हो गया बीटा बाई एक्स स्क्वायर
into e का पावर बीटा अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स. This is dy by dx. Now y is not defined for x is 0. अगर x बिल्कुल 0 है तो y is not defined. y नहीं निकलेगा अगर x 0 है. क्यों? अगर x 0 है, anything by 0 is infinity. तो e का पावर हो जाएगा अल्फा माइनस इन्फिनिटी, मतलब e का पावर इन्फिनिटी. और e का पावर इन्फिनिटी का वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं. सो अगर x 0 है, y is not defined. लेकिन अगर x tends to 0, so y will tends to 0. x tends to 0 मतलब x अगर घट रहा है तो y भी घटेगा. x अगर घट रहा है so बीटा बाई एक्स डिनोमिनेटर बढ़ेगा. डिनोमिनेटर बढ़ेगा मतलब इसका वैल्यू बीटा बाई एक्स का वैल्यू बढ़ेगा. x घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा, so बीटा बाई एक्स का वैल्यू बढ़ेगा. सो अल्फा से हमेशा एक बड़ा चीज घटाओगे, तो अल्फा से अगर बड़ा चीज घटाओगे उसका रिजल्ट विल बी स्मॉलर. तो e का पावर स्मॉल होगा, e का पावर छोटा होगा तो उसका वैल्यू भी कम होगा, इसलिए y भी घटेगा. सो एज x टेंड्स टू 0, y ऑल्सो टेंड्स टू 0. लेकिन अगर बिल्कुल x 0 है तो y का वैल्यू डिफाइंड नहीं है. इसका सेकेंड डिराइवेटिव अगर करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर u dash v 0 माइनस v dash 2x इंटू u बीटा बाई x का पावर 4 इंटू v इतना एज इट इज रहा. u dash v dash इसका डिराइवेटिव होगा e का पावर बीटा अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स इंटू बीटा बाई एक्स स्क्वायर v dash इंटू u बीटा बाई एक्स स्क्वायर. यहाँ एक x कटेगा, एक्स क्यूब, सो माइनस 2 बीटा बाई एक्स क्यूब e का पावर अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स. यहाँ हो जाएगा e का पावर अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स इंटू बीटा स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4. कॉमन लेंगे, e का पावर अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स कॉमन, सो माइनस 2 बीटा बाई एक्स क्यूब and this will be plus beta square by x का power 4. This is the second derivative. Point of inflection कब होता है? जब second derivative होता है 0. So at the point of inflection, inflection मतलब जहाँ ग्राफ का शेप, ग्राफ का कर्वेचर चेंज करता है. So at the point of inflection डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा. सो अल्फा माइनस बीटा बाई एक्स इंटू माइनस 2 बीटा बाई एक्स क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बाई एक्स 4 इज इक्वल टू 0. दो चीज़ का गुना 0 है, यह भी 0 हो सकता है, यह भी 0 हो सकता है. सो माइनस 2 बीटा बाई एक्स क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बाई एक्स 4 इज इक्वल टू 0. सो बीटा स्क्वायर बाई एक्स 4 इक्वल टू, इसको राइट साइड में ले आओ, 2 बीटा बाई एक्स क्यूब एक्स 4 कटेगा x, यहाँ एक बीटा कटेगा बीटा. सो बीटा बाई एक्स इज इक्वल टू 2, सो 2x इज इक्वल टू बीटा, x इज इक्वल टू बीटा बाई 2. सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन at the point where x is equal to beta by 2. At the to the left of this point, इसका लेफ्ट में the slope increases with x, to the right of this the slope decreases. इसका लेफ्ट में स्लोप इंक्रीज करेगा और बीटा बाई 2 का राइट में स्लोप डिक्रीज करेगा. बिकॉज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स at the point where the curvature of the graph changes, ग्राफ का शेप चेंज करेगा. और इसको हम लोग दिखाएंगे कि लास्ट फिगर 6. दिस इज योर फिगर 6. यहाँ पर इस तरह ग्राफ जाएगा, इस तरह यहाँ पर स्लोप चेंज करेगा एंड दिस पॉइंट इज योर बीटा बाई 2. टू द लेफ्ट ऑफ दिस द स्लोप इंक्रीजेज विथ x, टू द राइट ऑफ इट द स्लोप डिक्रीजेज. और यहाँ हम लोग दिखाएंगे जे अगर योर
x is 0, y क्या था, e का power alpha minus beta by x. So if x is equal to 0, if x is 0, so y हो जाएगा e to the power alpha minus beta by x is infinity. तो e का पावर अल्फा माइनस इन्फिनिटी, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा. सो अगर x 0 है, एनीथिंग बाई 0 इज इन्फिनिटी. सो दिस इज योर पॉइंट e alpha, and this is the point of inflection where second derivative is equal to 0. second derivative 0 है जब bx निकला beta by 2. So to the left of this point, the slope increases with x. To the right of the point, the slope decreases. This is the point of inflection. और दो लाइन लिख सकते हो. ये डबल लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं. The double law of transformation is commonly employed by econometricians where we have asymptotic levels of expenditure, varying marginal consumption rates, threshold levels of income for expenditure on certain commodities, and so forth. So we have completed the transformations today. Next day we shall be taking up a next chapter. Thank you.